we will start chapter 2, adaptations in plants. So all of you take out your science book, which is Millennium Science Junior 4, and the publication is Millennium Book Source Private Limited, and open page number 13, chapter 2, adaptations in plants. Now let's see what we will study in this chapter. Concept mapping, introduction. We will study in introduction adaptation of plants in different habitats. After that, terrestrial plants, adaptation of plants in mountains, deserts, marshes, hot and damp soil, plains. Then aquatic plants, adaptation of plants, floating plants, mixed plants, underwater plants. Then other plants, adaptation in plants in saline soil and acidic soils. Now this much we will study in this chapter. So let's start. Students, read with me. Have you ever wondered why some plants can grow only in soil and some others survive only in water? Do you think they must be different from each other in some ways? क्या आपने कभी सोचा है कि जो कुछ प्लांट्स सिर्फ सॉइल में ग्रो करते हैं और कुछ सिर्फ वाटर में सरवाइव करते हैं? क्या आपने सोचा है कि वहाँ पे क्या वो जो प्लांट्स होते हैं वो क्या एक दूसरे से किसी न किसी वे में डिफरेंट होते हैं? कैसे? हाउ? नाउ सेकेंड पैरा. Plants are found everywhere. You must have seen them growing in deserts, ponds, mountains and plains. Now, जो plants होते हैं वो हर जगह पर है. They are at everywhere. You have seen that they grow in deserts. वो deserts में grow करते हैं. Ponds, तालाब में grow करते हैं. Mountains and plains. Mountains पे भी grow करते हैं और plains पे भी grow करते हैं. Then, depending on the surroundings where they grow, plants differ from each other. Now, अपने surroundings के basis पे अपने surroundings पे कुछ plants ऐसे होते हैं जो surroundings पर depend होते हैं जहाँ पर वो grow कर रहे हैं. Suppose जैसे desert plant है तो क्या है desert plant के लिए desert plant को डेजर्ट वाली सराउंडिंग चाहिए होती है, वैसा एटमॉस्फेयर चाहिए होता है जैसा डेजर्ट के पास डेजर्ट जहाँ पे डेजर्ट होती है वहां पर होता है. ऐसे ही whereas some can grow only in cold regions, और ऐसे ही कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको ग्रो करने के लिए कोल्ड रीजन चाहिए, मतलब ठंडी प्लेस चाहिए. Now after that, the kind of weather and soil that plants need for their survival and growth is called their habitat. Now what is habitat? Habitat जो बोल रहा है कि जो वेदर का जो काइंड है कि प्लांट को कोल्ड रीजन चाहिए या फिर हॉट रीजन चाहिए या फिर सॉइल उसको कैसी चाहिए, माउंटेनियस सॉइल चाहिए या फिर डेजर्ट सॉइल चाहिए. तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये सरवाइव करते हैं बेसिकली काइंड ऑफ वेदर कि ये हॉट रीजन में करेंगे या फिर कोल्ड रीजन में. एंड सेकेंड इज द सॉइल, द टाइप ऑफ सॉइल वेयर दे आर ग्रोइंग. ये दो चीजें इनके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, इनको चाहिए होती हैं प्लांट को ग्रो और सरवाइव करने के लिए. सपोज अगर हम क्या कर रहे हैं, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट से एक प्लांट निकाल के हम लोग नॉर्मल जो है ये सॉइल में लगा दे तो क्या होगा? दे विल नॉट ग्रो. Okay, now definition in the blue block, take everyone. It is given that a place with living conditions suitable for an organism is known as its habitat. वो place जो living conditions पे हो, वो place जहाँ पे living conditions हो, जो living organisms हैं उनके हिसाब से. जैसे हम लोग हैं, हमें क्या चाहिए, हमें ना ही बहुत ही कोल्ड रीजन चाहिए होता है और ना ही बहुत हॉट रीजन, हमें नॉर्मल रीजन चाहिए होता है ताकि हम सरवाइव कर सकें. वैसे ही प्लांट्स को भी कुछ रीजन्स चाहिए होते हैं जिसकी कुछ जो है उनको सुटेबल कंडीशंस चाहिए होती हैं जिसके बेसिस पे वो सरवाइव
कर सकते हैं. नाउ पेज, टर्न द पेज, पेज नंबर 40. Now page number 14. Plants are found on land as well as in water. कुछ plants ऐसे होते हैं जिनको हम लोग land पे, जो plants होते हैं इनको हम लोग land पे भी found करते हैं और water में भी करते हैं. Water में जो plants होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? Aquatic plants. और जो land में होते हैं उनको हम लोग कहते हैं terrestrial plants. Broadly, the plants are divided into two groups according to their habitat: terrestrial plants and aquatic plants. Terrestrial plants, plants that grow on the land, and aquatic plants that grow in water. जो plants होते हैं उनको टू पार्ट्स में, टू कैटेगरीज में उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है. नंबर 1 है टेरेस्ट्रियल और दूसरा है एक्वाटिक. जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं वो क्या है? दे ग्रो ऑन द लैंड, वो लैंड पे ग्रो करते हैं. और जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है? वो वाटर में ग्रो करते हैं. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एक्वाटिक प्लांट्स. As different plants are found in different surroundings, special features are developed by the plants to adjust in these surroundings. These features are known as adaptations. Now, कुछ जैसे कि डिफरेंट तरह के प्लांट्स होते हैं उनको डिफरेंट तरह की सराउंडिंग्स चाहिए होती हैं. जैसे स्पेशल फीचर्स आर डेवलप्ड बाय द प्लांट्स टू एडजस्ट इन देयर. नाउ जो प्लांट्स होते हैं उनमें कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि उन्हें किस तरह की सराउंडिंग चाहिए. ओके, तो उसको हम लोग कहते हैं, जो वो फीचर्स होते हैं, स्पेशल फीचर्स होते हैं, दैट फीचर्स आर नोन एज अडेप्टेशंस. उन फीचर्स को हम लोग कहते हैं अडेप्टेशंस. नाउ अडेप्टेशंस आर द रीजन व्हाई सम प्लांट्स कैन सर्वाइव इन कंडीशंस वेयर अदर प्लांट्स कैन नॉट. अडेप्टेशंस ही वो रीजन है जहाँ जिसके बेसिस पे कुछ प्लांट्स सपोज एक जगह पे एक कंडीशन में सरवाइव कर पा रहे हैं, पर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो वो सेम जो पहले वाले प्लांट्स की जो कंडीशंस थी उस पे दूसरे अदर प्लांट्स हैं वो सरवाइव नहीं कर पा रहे. लेट अस स्टडी अबाउट डिफरेंट प्लांट्स एंड देयर adaptations. Now we will see the different types of plants and their adaptations. The definition is features that help the organisms in surviving in different kinds of habitats are called adaptations. Adaptations क्या होते हैं? Adaptations वो features होते हैं जो organisms को help करते हैं survive करने में उनके different kinds of habitats में. Means उनकी जो भी conditions हैं जो है either the weather condition or the soil, जो भी उनकी conditions हैं उसमें survive करने. Now, terrestrial plants. Plants growing on land are called terrestrial plants. जो plants land पर grow करते हैं उन्हें हम लोग terrestrial plants कहते हैं. There are different types of habitats on land such as deserts and mountains. अब जो terrestrial plants होते हैं उसमें क्या होता है? अलग अलग तरीके के हैबिटेट्स भी होते हैं. कुछ डेजर्ट्स होते हैं और कुछ माउंटेन्स होते हैं, कुछ प्लेन्स भी होते हैं. ओके, सो नाउ लेट अस रीड हाउ प्लांट्स एंड ट्रीज अडैप्ट टू सच हैबिटेट्स. आप देखते हैं कैसे जो प्लांट्स और ट्रीज है वो इन तरह की हैबिटेट्स को अडैप्ट कर रहे हैं. ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट, प्लांट्स इन माउंटेन्स. Mountain areas have tall and straight plants. Trees like pines, deodars and firs grow in the hills. कुछ mountain areas होते हैं, जो mountain areas होते हैं उनके जो plants होते हैं वहाँ पर वो कैसे होते हैं? tall होते हैं और straight होते हैं. They have tall and straight plants. As you can see in third figure, that जो mountain plants हैं वो कैसे हैं? tall है और straight है. Trees like pines, deodars and firs grow in the hills. Now, कौन से trees example mountain trees के example क्या है? Mountain trees के examples है pines, deodars और firs. ये वो plants हैं, trees हैं जो mountains पर grow करते हैं. Then they are popularly known as coniferous trees. और इन trees को हम लोग coniferous trees भी कहते हैं और conifers भी कहते हैं.
Then there is heavy snowfall in winters in hilly areas. जो हिली एरियाज पे, जो माउंटेन्स पे जो ट्रीज होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, हिली एरियाज में बेसिकली बहुत बारिश होती है, स्नो जो है, सॉरी नॉट बारिश, वी कैन वहाँ पे स्नोफॉल होती है बहुत. फिर therefore these trees have long needle like leaves. और जो ट्रीज होते हैं इनके पास इनकी जो लीव्स होती हैं वो जो है लॉन्ग निडल की तरह होती है, मीन्स एक लंबी सी सुई की तरह इनकी लीव्स होती हैं. फ्रॉम विच स्नो स्लिप्स ऑफ इजली. जिसकी वजह से जो स्नोफॉल होता है विंटर की सीजन में जो है, तो क्या होता है, इन लीव जो है लॉन्ग निडल लाइक लीव्स होती हैं, लंबी लंबी सुई की तरह जो लीव्स होती हैं, तो क्या करती हैं, जो भी स्नो प्लांट पर या ट्री पर पड़ती है तो वो स्लिप कर जाती है ट्रीज से. देन दिस हेल्प्स देम टू सर्वाइव इन फ्रीजिंग वेदर कंडीशंस. और ये हेल्प करती है उन लीव्स को उन प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए जो है फ्रीजिंग सीजन में. फ्रीजिंग सीजन मीन्स अगर स्नो क्या होगी, अगर स्नो हटे नहीं पाएगी और जो है स्नोफॉल होती रहेगी तो क्या होगा, जो भी ट्रीज लग रहे हैं वो सब फ्रीज हो जाएंगे. तो उनसे हेल्प करती है कि जो फ्रीजिंग वेदर कंडीशन है वो वहाँ पे हेल्प करते हैं उनको सरवाइव करने के लिए. देन कॉनिफेरस ट्रीज डू नॉट बेयर फ्लावर्स बट बेयर कोन्स विच कैन विथस्टैंड कोल्ड. जो कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं उनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं और ये क्या बेयर करते हैं, इनमें कोन्स बेयर करते हैं. कोन्स मीन्स जो उनका टॉप होता है वो एक कोन की तरह होता है जो कि उनको हेल्प करता है ताकि वो जो है कोल्ड में भी सरवाइव कर सके इजीली. देन thick woody and straight stems of these trees with drooping branches keep them from breaking away by heavy snowfall. Now जो इनकी जो है स्टेम्स होती हैं वो कैसी होती हैं, थिक होती हैं, वुडी होती है और स्ट्रेट होती हैं. जो है वो क्या करती हैं वो, और इनकी जो ब्रांचेस होते हैं वो ड्रूपिंग ब्रांचेस होती है. ड्रूपिंग ब्रांचेस मीन्स स्ट्रेट जो है स्ट्रेट होती है, जैसे हम लोग पिक्चर में आप लोग देख सकते हो. तो विद ड्रूपिंग ब्रांचेस कीप देम फ्रॉम ब्रेकिंग अवे बाय हैवी स्नोफॉल. जो ड्रूपिंग ब्रांचेस होती है तो इसकी वजह से क्या होता है, जो इनको हेल्प करता है ताकि ये स्नोफॉल में जो ट्री है वो ब्रेक ना हो. ओके, क्लियर. नाउ सी पेज नंबर 15. Point B, plants in deserts. The desert areas have very few plants cause of little rainfall. To prevent the loss of water through stomata, the desert plants have spines instead of leaves. Cactus, palm and brittle bush are some of the plants found here. As there are no leaves, the stem of these plants is green, which keeps them in the process of photosynthesis. The stem is also fleshy and stores food and water for the plant. The roots of these plants are well developed to reach underground water. Now, जो desert plants होते हैं, जो plants desert में grow करते हैं, उनको क्या चाहिए होता है, वो वहाँ पे जो है डेजर्ट एरियाज में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं. जो नंबर ऑफ प्लांट्स होते हैं डेजर्ट एरियाज में वो कम होते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल जो होती है वो बहुत ही कम होती है, बिकॉज देयर इज अ लिटिल रेनफॉल. दैट्स व्हाई जो वाटर का लॉस प्रिवेंट करने के लिए जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमाटा, द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्पाइन्स इंस्टेड ऑफ लीव्स. जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अब डेली तो वहाँ पे बारिश होती नहीं है और जो बारिश की जो अमाउंट है वो भी बहुत ही कम है. तो जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं स्पाइन्स में. मतलब जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें लीव्स नहीं होती हैं, उसमें स्पाइन्स होते हैं. स्पाइन मीन्स कांटे होते हैं. तो जो स्पाइन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो वाटर को स्टोर करते हैं
for the further use or for the survival of them. ओके, तो अब कौन कौन से प्लांट्स है जो कि डेजर्ट पे ग्रो करते हैं? दे आर कैक्टस, पाल्म एंड ब्रिटल बश. नाउ यू कैन सी द पाल्म डेजर्ट. पाल्म ट्री ग्रो इन डेजर्ट्स. द पिक्चर है, उसमें देखो, आप देख सकते हो कि जो ट्री है उसकी जो लीव्स है वहाँ पे लीव्स नहीं दिख रही है, वहाँ पे हमें स्पाइन्स दिख रहे हैं. एंड जो कैक्टस है वो उसमें भी सेम थिंग है, तो वहाँ उसमें भी लीव्स नहीं है. एज देयर आर नो लीव्स द स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स इज ग्रीन. जैसे कि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं इनमें लीव्स नहीं होती हैं, जिसकी वजह से जो स्टेम होती है वो ग्रीन होती है, और जो कि उनको हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने में. जब हमने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, उसमें क्या था, जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं और जो लीव्स होती हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती हैं. और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता था कि जो प्लांट का जो फूड होता था वो प्रिपेयर होता था. अब जो डेजर्ट प्लांट्स है इसमें क्या है, इसमें लीव्स नहीं प्रेजेंट है, इसमें स्पाइन्स होते हैं, तो इसकी वजह से जो इसकी स्टेम होती है वो ग्रीन रहती है ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सके. Then the stem is also fleshy and stores food and water for the woody plant. For the plant, जो स्टेम होती है ये इसकी फ्लैशी होती है और जो फूड होता है उसको स्टोर करती है, फूड और वाटर को स्टोर करती है प्लांट्स के लिए. फ्लैशी मीन्स वुडी नहीं होती है, थोड़ी सॉफ्ट टाइप में होती है, इसमें वुड नहीं होता है. Then the roots of these plants are well developed to reach underground water. और जो इन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो बहुत अच्छे से वेल डेवलप्ड होती हैं. क्यों? ताकि जो अंडरग्राउंड वाटर है वहां तक कि वो पहुंच सके फॉर द वाटर. ओके, टू गेट वाटर. देन सी पॉइंट प्लांट्स इन मार्शेस. Now plants in marshes. The marshy areas lie near the seashore where rivers empty into the sea. मार्शी एरियाज कौन से होते हैं? मार्शी एरियाज वो एरियाज होते हैं जो शी शोर के पास में होते हैं और वहां पे जो रिवर होती है वो सी में एम्प्टी हो रही होती है, मीन्स या कन्वर्ट हो रही है. और वी कैन से जो शी शोर्स होते हैं, जो समुद्र के किनारे होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं मार्शी एरियाज. These areas are wet, humid and very clayey soil in the with plenty of water. अब जो ये जो एरियाज होते हैं ये क्या होते हैं? ये वेट होते हैं, ह्यूमिड होते हैं, और जो इनकी सॉइल होती है वो क्लेई होती है. क्लेई क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे वाटर रहता है, और वाटर रहने की वजह से क्या हो जाता है, जो सॉइल होती है वो क्लेई हो जाती है, मतलब एक चिकनापन आ जाता है सॉइल में. Then the plants found in these areas are called mangroves. और जो marshes areas में जो plants मिलते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं mangroves. As the soil is covered with water, the roots do not get air to breathe. और जैसे कि जो soil होती है वो क्या होती है, वो basically ज्यादातर soil से cover रहती है, वो ज्यादातर सॉइल से कवर रहती है. तो क्या होता है, जो रूट्स होती हैं उनको ब्रीथ करने के लिए एयर नहीं मिलती है जो है, एंड हेंस दे ग्रो आउट ऑफ सॉइल एंड वाटर. और इसकी वजह से ही जो इसकी रूट्स होती हैं वैसे तो रूट्स क्या होती है, अंडरग्राउंड ग्रो होती हैं, बट जो सॉइल है वो बहुत ही क्लेई होती है, तो वहां पे वाटर का प्रेजेंस जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो है सॉइल होती है उसमें एयर सॉइल के नीचे नहीं जा पाती है. तो इसकी वजह से जो रूट्स होती हैं वो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करती हैं, मींस दे आर अबव द ग्राउंड और अबव द सॉइल, ताकि उनको ब्रीथ करने के लिए एयर मिल सके. देन दीज रूट्स आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स. और ये जो रूट्स होती हैं इनको हम लोग कहते हैं ब्रीथिंग रूट्स. कैंडिला एंड सेरियोप्स आर एग्जांपल्स ऑफ सच प्लांट्स. तो जो कैंडलिया और कैरियोप्स जो है वो एग्जांपल है प्लांट्स इन मार्शेस के. देन डी पॉइंट प्लांट्स इन हॉट एंड डैम्प सॉइल. द प्लेसेस नियर द सी कोस्ट आर डैम्प एंड hot and damp.
जो प्लेसेस जो सी कोस्ट के पास के जो एरियाज होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें जो है जो वो जो प्लेसेस होते हैं वो हॉट होते हैं और डंप होते हैं। हॉट होते हैं तो जो द प्लांट्स ग्रोइंग हेयर नीड प्लेंटी ऑफ वाटर एंड सनलाइट। और यहाँ पे जो प्लांट्स ग्रो करते हैं इनको बहुत सारा पानी चाहिए होता है। दे नीड प्लेंटी ऑफ वाटर एंड सनलाइट। उनको पानी और सनलाइट की जो अमाउंट उनको चाहिए होती है वो ज्यादा होती है। देन द ट्रीज हेयर हैव मेनी लीव्स। और यहाँ की जो ट्रीज होती हैं उनकी जो लीव्स होती हैं वो क्या वो बहुत ज्यादा होती है। उनके पास जो लीव्स होती हैं इन प्लांट्स की वो बहुत ज्यादा होती हैं। दे आर मेनी इन नंबर एंड दे डू नॉट शेड देयर लीव्स इन विंटर्स। और विंटर्स में क्या होता है, ये अपनी लीव्स को शेड नहीं करते। मीन्स कुछ प्लांट्स आपने देखे होंगे कि जब विंटर्स आते हैं तो उन प्लांट्स की लीव्स क्या हो जाती हैं, शेड हो जाती है, मतलब मुरझा जाती है और वे कैसे झड़ जाती हैं। बट जो प्लांट्स जो हॉट एंड डैम्प सॉइल में होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता है। दैट्स व्हाई देयरफॉर दे आर कॉल्ड एवरग्रीन प्लांट्स। दैट्स व्हाई ये इन प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, इन प्लांट्स को हम लोग एवरग्रीन ट्रीज कहते हैं। देन सम ऑफ एवरग्रीन ट्रीज आर कोकोनट एंड रबर। नाउ जो कोकोनट और रबर का ट्री होता है ये एवरग्रीन ट्रीज में आता है। दिस इज अ एवरग्रीन ट्री। देन प्लांट्स इन प्लेन्स। प्लांट्स इन प्लेन मीन्स जो प्लेन्स मतलब मैदान, तो वो प्लांट्स अब जो प्लेन्स में ग्रो करते हैं। नाउ दीज ट्रीज इन द प्लेन्स आर डेसिडुअस ट्रीज। नाउ जो प्लांट्स जो है प्लेन्स में फाउंड होते हैं उनको हम लोग कहते हैं डेसिडुअस ट्रीज। दीज ट्रीज कैन बियर द हीट ऑफ समर एंड प्रोवाइड अस शेड। जो ये जो ट्रीज होते हैं ये जो समर की जो हीट होती है उसको बियर कर लेते हैं, मतलब उसको सह लेते हैं और हमें क्या देते हैं, हमें जो है शेड प्रोवाइड करते हैं, मतलब हमें छाया प्रोवाइड करते हैं। देन हाउएवर दे शेड देयर लीव्स इन विंटर एंड गिव अस एनफ सनलाइट टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड। और कोल्ड्स में क्या करते हैं, विंटर्स में क्या करते हैं, जो इनकी जो लीव्स होती हैं वो शेड हो जाती है। अपनी लीव्स को ये लोग शेड कर देते हैं ताकि हमें ताकि हमें सनलाइट प्रॉपरली मिल सके और हम लोग कोल्ड से खुद को प्रोटेक्ट कर सके। नाउ पीपल, बनियन, मैंगो, गुलमोहर, सीसम एंड साल आर सम ऑफ द डेसिडुअस ट्रीज। नाउ डेसिडुअस ट्रीज के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? दे आर पीपल, बनियन, मैंगो, गुलमोहर, सीसम एंड साल। तो ये जो ट्रीज है क्या है, ये डेसिडुअस ट्रीज है। Now thank you class. We will discuss the rest portion in our next class, and that is aquatic plants. We will discuss the aquatic plants in our next class.